अवैध कोरेक्स कप सिरफ के विरुद्ध पुलिस ने किया रेड कार्रवाई। बड़ी खबर चित्रंगी से, जहां थाना चित्रंगी मुख्यालय अस्पताल चौराहा में राम अवतार बेस जनरल स्टोर दुकान से चित्रंगी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई। 53 सीसी अवैध कोरेक्स सिरफ बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्त में लेकर एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया। पुलिस ने आज न्यायालय में पेश किया है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। हमारे बीच में पुलिस उपखंड अधिकारी चित्रंगी आशीष जैन सर हैं। सर, कल आपके द्वारा एक अवैध कोरेक्स की कार्रवाई की गई है, उसमें क्या था पूरा मामला? जी बिल्कुल, कल शाम को जो है थाना चित्रंगी पुलिस को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर अस्पताल चौराहा के पास एक जनरल स्टोर विक्रेता, जिसका नाम राम अवतार बैस, पिता जो है बसंतलाल बैस, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम देवरी, थाना गढ़वा है, जो चित्रंगी अस्पताल चौराहे पर जनरल स्टोर की दुकान खोली है, जिसमें उसने करीब 53 सीसी जो है अवैध कोरेक्स की रख करके जो है यहाँ चित्रंगी में नशाखोरी करवा रहा था। जिस पर सूचना प्राप्त होने पर चित्रंगी पुलिस ने जो है रेड कार्रवाई करते हुए उससे 53 सीसी बरामद करके जो है एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और 22 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस वक्त की खास खबर ओडिशा के करंजिया से, जहां जशीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चक्रधर हेमब्रह्म के नाम की घोषणा के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और अपनी प्रतिक्रिया दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मयूरभंज सदर जिला अध्यक्ष काशीनाथ हेमब्रह्म और जिला युवा अध्यक्ष व रायरंगपुर नगर प्रमुख अभिषेक पटनायक मौजूद थे। ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଦରର ଯେଉଁ 4ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଜଶୀପୁରର ଯୁବ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ହେମବ୍ରହ୍ମ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଏଠିକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ବିଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଶୀପୁରର ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। କ'ଣ କହିବେ, 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 3ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘୋଷଣା ନ ହୋଇପାରିବାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ 48ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ତାର ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିବେ, ବାକି 3ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଓ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ନେତା ଯିଏକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରତାପ ଦାସ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଉଚିତ ବିଚାର କରି ସେ ଜଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଯିଏକି ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସଫଳତାର ସହ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚକ୍ରଧର ହେମବ୍ରହ୍ମ ମହୋଦୟଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକି ଶିମିଳିପାଳରେ ସେ କହିଲେ, ଶିମିଳିପାଳରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚକ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତା ସମାଧାନ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଯୁବ ନେତା ଯିଏକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆଗେଇ ନେବ, ସେଭଳିଆ ଯୁବ ନେତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଆମ ଜଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହିତ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଓ ଆଶା କରୁଛି ଯୁବ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚକ୍ରବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏଠି ଜଶୀପୁରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜୟ ହେବା। धन्यवाद देवाक चाहिए जिलार सभापति काशीनाथ हेमब्रह्म आम घर उपस्थित अच्छा युव नेतृत्व आम युवा सभापति अभिषेक पट्टनायक महोदय अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री जे आज जशीपुर निर्वाचन मंडली समस्त विधायक
प्रार्थी हिसाब से घोषणा कर निश्चित भाव में आज स्वागत योग्य जसीपुर निर्वाचन गोटे उन्नति पाई जो माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आशा व्यक्त कर निश्चित भाव सफल कौन कौन समस्या को समाधान करवा बोली आशा रखिंट क्या प्रमुखता देवे विभिन्न समस्या रही निश्चित भाव आप जानते बहुत समस्या को आम शिमिलीपाल समस्या को समाधान करूँ माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विभिन्न लोकामुखी योजना माध्यम एथर आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना प्रति पंचायत को 50 लाख टका दिखाई विभिन्न समस्या को समाधान कर विभिन्न लाइट डिपार्टमेंट माध्यम बड़ बड़ ब्रिज रास्ता मोरा को पुनर्निर्माण मो गोटे मुझे प्रतिश्रुति देवी समस्त जसीपुर निर्वाचन में जिते भी जनशाला अच्छा आशीर्वाद आज विधायक प्रार्थी हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री चयन कर अशेष धन्यवाद देवी जसीपुर निर्वाचन समस्त जनशाला को जहाँ भी समस्या प्रति गण अनुकूल जहाँ भी अच्छी बाहर करके निश्चित भाव से समस्या को आगामी दिन में विधायक हिसाब से जीतिक आसिले समस्या को प्रथम आग्राह्य देवी और समस्त समस्या समाधान निमंते माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पाखे आम पांड्या सर अच्छा पाखे उपस्थापन कर यथासंभव जसीपुर निर्वाचन समस्या को दूर करने 2019 मसीहा निर्वाचन में बीजेपी एठार विपुल विजय हासिल करथिला मयूरभंज जिले में ताको केभଳି भाबे दल प्रतिहत करिवो किसी त्रुटि विचुद्ध विगत इलेक्शन थी आम समस्या हृदयम करूँ धन्यवाद देवी प्रणव प्रकाश दास महोदय को जो आम राज्य संगठन संपादक अच्छा आम मयूरभंज जिलार पर्यवेक्षण दायित्व नेले से त्रुटि को आम सुधारू और सफल भाव में जिला परिषद इलेक्शन 56टा जिला परिषद आम 53टा जिला परिषद विजु जनता दल प्रदान कला और निश्चित भाव में आप जानते जिला सभापति काशीनाथ दमर महोदय कहते यही आम जसीपुर निर्वाचन मंडल दुईटा इलेक्शन गोटे है जेनेल इलेक्शन और बाई इलेक्शन विजु जनता दल विजय लाभ करता निश्चित भाव में जसीपुर निर्वाचन मंडल एथर विजु जनता दल विजयर बाना उठे कौन दिमत ना श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का विधिवत शुभारंभ। जिला कलेक्टर ने पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण से किया विधिवत शुभारंभ। ग्रामीण संस्कृति के साथ सजा हाट बाजार। बड़ी खबर राजस्थान के बलोत्रा से, जहां राजस्थान के प्राचीन श्री मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेले को लेकर आज भी उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। मेला मैदान में युवाओं के साथ बुजुर्गों की उपस्थिति के साथ सजा हाट बाजार ग्रामीण संस्कृति को रूबरू करा रहा है। यह मौका शुक्रवार को श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के विधिवत उद्घाटन के दौरान देखने को मिला। विख्यात मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा शुक्रवार को ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ हुआ। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने विधि विधान से पूजन कर इसकी शुरुआत की। पशुपालक विभाग की ओर से आयोजित मेला को देखने व खरीदारी के लिए जिले भर से हजारों की संख्या में मेलार्थी पहुंचे जाता है। तो अब की बार हमने बात की, विभाग से भी बात की, उन्होंने कहा कि साहब जो पैसा आपके यहाँ पर आता है उसमें से जो भी मूलभूत जो सुविधाएं करने के लिए जो खर्चा होता है आप उसमें से वो अपने यहीं पे अपने स्तर पर उसका खर्चा कर ले, बचा हुआ पैसा आप हमें वापस भिजवा दें। अब की बार हो सकता है कि हम लोगों के लिए भी पहली बार था, थोड़ा हम लोग लेट हुए, तो जो बेसिक जो सुविधाएं हैं वो हम लोग हमारी तरफ से करा रहे, लेकिन मुझे जरूर आशा है कि अगली बार से और भी अच्छे से हम लोग सुविधाएं कराएंगे मेले में जो आने वाले लोग हैं उनके लिए, और शांतिपूर्ण तरीके से मेले की जो भी समाअवधि रहती है उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्रवाई यहाँ पर हो। संपूर्ण जो है हमारे कर्मचारी भी हैं, पशुपालन विभाग के हैं, पुलिस का भी जाब्ता लगा हुआ है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना, कोई चोरी चकारी की, इस प्रकार की कोई बात। भाजपा ने मनाया 45वां स्थापना दिवस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किए फल वितरित। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल एवं ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने आसींद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर जगह जगह पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आसींद कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित किए गए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण किया, पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया।
समन्वय संयोजक तेजवीर सिंह चुंडावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सभी समुदाय के प्रति एक अच्छी विचारधारा के साथ सबका विकास के साथ चलने वाली पार्टी है। भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने आज विश्व के शिखर पर अपनी पहचान बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष फौजमल गुज्जर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में सदैव कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है तथा जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नवनिर्मित सड़क, ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत किया जा रहा सड़क का निर्माण कार्य। मामला झांसी जिला के अंतर्गत मोट तहसील के ग्राम मनकपुरा का है, जहां ठेकेदार की मनमानी से नवनिर्मित सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि ग्राम मनकपुरा में पीडब्ल्यूडी द्वारा 250 मीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामवासियों ने बताया कि ठेकेदार अपनी मनमानी से मानक के विपरीत सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है। पुरानी सड़क की साफ सफाई किए बगैर ही बिना डामरीकरण के धूल मिट्टी में ही मानक विहीन नई सड़क डाली जा रही है। इस संबंध में ग्रामवासियों ने उप जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मानक के अनुरूप सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की है। बावजूद इसके ठेकेदार अपनी दबंगई के बल पर मानक विहीन सड़क का निर्माण कार्य कर रहा है। सड़क निर्माण में पर्याप्त मात्रा में न तो मिट्टी डाली जा रही है, न ही डामर का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कुछ ही दिनों में यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाएगी। ग्रामवासियों ने प्रशासन से मामले की जांच करते हुए ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने और मानक के अनुसार सड़क का निर्माण करवाए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? गजराज। कहाँ के निवासी हो? मनकपुरा। इस रोड को लेकर क्या समस्या है आपकी? रोड के साथ इसलंग जो झाड़ झक्कड़ हैं वे हटा करके और सही तरीका से रोड गिनना चाहिए, क्योंकि ये धूरा में ऐसे ही डालेंगे तो उखड़ने वाला हो जाएगा। और इस पर पानी के समय और जो बात में बताया गया है, जो अब एक आंगुर गिट्टी गिरेगी क्या होगा। इस संबंध में आपने अभी शिकायत की है किसी अधिकारी को? शिकायत तो फिर मतलब कौन आया था, फिर क्या कहा गया? उस टाइम पे साहब हम आते ही नहीं। अच्छा ठीक। क्या नाम है आपका? असगर अली। ये काम आप ही देख रहे हैं क्या? मेडगिरी कर रहे हैं? कहाँ से कहाँ तक सड़क डाली जा रही है? जी यहाँ से मंदिर से और यहाँ 2800 मीटर है। तो किस नीति से कर रही है सड़क? पीडब्ल्यूडी से। तो इसमें जो ग्रामवासी खड़े हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे डामर का छिड़काव नहीं हो रहा है, मिट्टी साफ नहीं की जा रही। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कहाँ के निवासी हो? मनकपुरा। ये जो सड़क डाली जा रही है, इस संबंध में क्या शिकायत की थी आपने? कानून को साहब आए थे और क्या है पूरा मामला? क्या आप लोगों का कहना है सड़क के विषय में? देखो रोड की हमने जाता ही कि ये जहाज कड़ेंगे नहीं सकते, और जो रोड डर रहा हो कार देश में डालो आप यहाँ पे। हाँ बताइए। तो ये लोग खेत वाले आए, सीधे हमको पकड़ा पहले और मारो, और रोड में जो है सही तरह से रोड भी नहीं डलवा रहे। क्या समस्या आ रही है रोड में? किस तरीके से रोड डाला जा रहा है? यहाँ जो डामर डाला जा रहा है वो डाला जा रहा है कि नहीं? साफ सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नीचे पीछे कुछ नहीं किया, बिल्कुल धूल में डाला। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? सही तरह से डल जाए साहब, 5 साल में एक बार तो सुनवाई होती। इस संबंध में आपने बात की है ठेकेदार से या मेट से वगैरह से, किसी से बात की है रोड के संबंध में? क्या कह रहे थे वो लोग? हमने यार कई लेबर बोली कि जैसे ये लोग कह रहे खेत वाले बात आपसे डाल रहे हैं हम पे। ठीक। सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने से इंडिया गठबंधन में मचा हड़कंप। दीप नारायण यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी पर लगाए आरोप। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और भाजपा का गढ़ कही जाने वाली खजुराहो लोकसभा में इंडिया गठबंधन समर्पित सपा प्रत्याशी मीरा दीप नारायण यादव का नामांकन पत्र निरस्त होने से इंडिया गठबंधन में हड़कंप मच गया है। दीप नारायण यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुरेश कुमार पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि 2 कमियां निकालकर फॉर्म निरस्त किया गया है, जिनमें पहली कमी वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी पुरानी है। वोटर लिस्ट में जहां 2 जगह हस्ताक्षर होने थे, वहां केवल 1 जगह हस्ताक्षर है। दीप नारायण यादव ने बताया है कि इसके लिए 4 अप्रैल को जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। 5 अप्रैल को भी 3 बजे तक का समय था, लेकिन कोई भी जानकारी देने या मौका देने के बजाय सीधे फॉर्म निरस्त करने की बात कह दी गई।
अभी तक कोई लिखित जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा दीप नारायण यादव ने दावा किया है कि फोरम चाहे निरस्त हो जाए लेकिन वह चुनाव लड़ेंगे। अभी 15 फोरम और पड़े हैं, किसी न किसी प्रत्याशी को वह समर्थन देकर सबके साथ बैठकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया, अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो ख़राब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। नगर पालिका चुनाव में कलेक्टर दबाव में है, नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में लड़ेगा। विधानसभा के पर्चों में भी सुधार होता है, विधानसभा में जो फॉर्म जमा की जाए। जिला जालौन कोटरा कस्बे से धड़ल्ले से चल रहे ओवरलोडेड ट्रक की नंबर प्लेट भी गायब। कस्बा कोटरा में प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोडेड ट्रकों का आवागमन रहता है। रात्रि में ओवरलोडेड ट्रकों का निकलना तो रहता ही है, इसके अलावा भी ओवरलोड ट्रक बिना नंबर प्लेट के चलते दिखाई पड़ते हैं। ड्राइवर से पूछने पर पता चलता है कि नंबर प्लेट टूट गई है। नंबर प्लेट देखने पर बिल्कुल सही सुरक्षित पाई जाती है। कोटरा मुख्य सड़क से तो आम आदमी वैसे भी परेशान है, परंतु तेज रफ्तार से चल रहे ट्रकों से जनता में भय बैठ गया है। ट्रकों में ओवरलोडेड बालू भरकर कोटरा से निडर होकर निकलते रहते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। कोटरा के पक्के पुल के पास कैमरा लगा हुआ है, उससे छुपने के लिए नंबर प्लेट छुपाने के साथ साथ कुछ ट्रकों में नंबर प्लेट के कुछ अंक भी छुपा दिए जाते हैं, जिससे चालान न किया जा सके। आखिर किसके छत्र छाया में चल रहा है ओवरलोडेड ट्रकों का यह। भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय सागर में डॉक्टरों की मनमानी से मरीजों की सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़। भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय सागर मध्य प्रदेश बना हुआ है सुर्खियों में। डॉक्टर प्रमोद सिजारिया के द्वारा ग्राम मडिया कीरत के प्रभुदयाल आदिवासी के पेट का ऑपरेशन कर 2 माह बाद चेक करने के लिए बोला गया। 2 माह से पहले प्रभुदयाल के पिता देवी आदिवासी चेक करने पहुंचे तो प्रभुदयाल को भाग्योदय के डॉक्टर प्रमोद सिजारिया के द्वारा दोबारा ऑपरेशन करने को बोला गया। देवी आदिवासी ने जल्दीबाजी में पैसों की व्यवस्था की और प्रभुदयाल का दोबारा ऑपरेशन करवाया। उसके बाद भी ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं हुआ और लैट्रिन की थैली आज भी वर्तमान में बाहर है। डॉक्टर प्रमोद सिजारिया ने भोपाल ले जाने की बोलकर हाथ खड़े कर दिए और प्रभुदयाल पिता देवी आदिवासी से लगभग 5 लाख रुपए लूट लिए गए। उसको इस हालत में खड़ा कर दिया कि वह न घर के रहे न घाट के। आज की स्थिति माने तो प्रभुदयाल की यह हालत है कि वह आज मरे या कल। डॉक्टर प्रमोद सिजारिया से बात की गई तो डॉक्टर बोले कि उसको टीबी थी और उसकी आंतें चिपक चुकी हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते। भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय के प्रबंधन गरीब जनता पर ध्यान देना कि डॉक्टरों पर। एक तरफ डॉक्टर भगवान माना जाता, वहीं दूसरी तरफ गरीब जनता कर्ज उठाकर इलाज के लिए भाग्योदय तीर्थ हॉस्पिटल जाती है, निराश होकर वापिस आ जाती है। यह गरीब की दास्तान जो हम आपको दिखा रहे, उसके पास न जमीन बची है न पैसा। विद्यासागर महाराज ने गरीब जनता की सेवा के लिए भाग्योदय तीर्थ चिकित्सालय का नाम रखा था, लेकिन यहाँ तो लूट हो रही है। कहाँ ना भैया आपको? प्रभुदयाल। क्या दिक्कत हो रही थी आपको? पेट में दर्द हो रहा तो नीचे से उठा तो गुट्टा सो तो छाती के ना अड़ जात तो भाग्योदय में कितनी बार ऑपरेशन हुआ आपको? 2 बार। अब क्या कह दी डॉक्टर ने? उनने मना कर दी, घर ले जाओ। हाँ।
कितने पैसे ले लाए आपसे? 5 लाख रुपए। दादा क्या नाम है आपको? देवी। क्या समस्या से जूझ रहे हो? पेट फिरा रहा तो बच्चा को सो भागोदय में भर्ती कर लो तो सो ने ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन करके इन्हें 8 दिन रख के हमारी छुट्टी कर दे के बोले कि तुम जो 2 महीना हो जाए पूरे स्वास्थ्य से हम तुम्हारा जहाँ कोता कर दें, सही कर दें। सो हम दूसरे महीना जो पूरा तो नहीं हो पा, हम पहले पहुँचे से ने दूसरा के ऑपरेशन करो। फिर मुझ सिजर गया। कितने पैसा ले लाए आपसे? 5 लाख रुपया। अब क्या कह दी? अब नहीं कर दी के मतलब अब हमारा कोई उपाय नहीं है। और नहीं इन्हें हमें भागो दे से इन्हें पहुँचाए कहाँ? भोपाल। अच्छा। कि जाओ ये जाँच करवा ले आओ और फिर हम तमाम सही कर दे। सो हम भोपाल चले गए। सो वो तो भोपाल वालों ने साफ मने कर दी कि जी तो जाओ नहीं से करवा जी काय को ऑपरेशन कर दो, कैसे ऑपरेशन कर दो। मतलब भोपाल वालों ने कह दी कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं थी पेट में, इन जांचों में कमी नहीं है। अब भाग गुदय वाले डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? जी ने मने कर दी, हमें भगाई दे, निकाल दे कि तुम अब और उपाय नहीं है, तुम्हारे उपाय की वो तो नागपुर को ले जाओ। लगभग कितने पैसा ले लाए आपसे? 5 लाख रुपया। लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा ने टिकट मिलने पर भाजपा का किया आभार व्यक्त। लोकसभा बीजेपी उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा ने कहा है कि मैं लोकसभा टिकट की दौड़ में नहीं था, पर भाजपा ने मुझे टिकट देकर भरोसा जताया है। दौसा लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा चुनावी प्रचार के दौरान रानौलीगढ़, गुमानपुरा, भांडारेज का दौरा कर अपने विचार व्यक्त किए। साथ में विधायक विक्रम बंसीवाल, रामकिशोर मीणा, अमर सिंह कसाना, किरण डोरिया, सरोज मीणा, भावना सैनी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वो गोली चलाने की आवश्यकता पड़ती थी तो उच्च अधिकारियों से लिया जाता था आदेश, तब तक वो जो आतंकी हमारे वीरों को नष्ट कर शहीद कर देते थे। और सुनिए अब कविता का माध्यम से। अरे वारे मारा मोदी जी तन काम जोर का कर दिया, 56 इंच सीना उसको 61 इंच कर दिया। सेना का तने हाथ खोल दिया, झटे आदेश दे दिया, आतंकी के गोली मारो यूं सेना से कह दिया, आतंकी के गोली मारो यूं सेना से कह दिया। उसके घर में उसके सैनिक 50 का ढेर किया, उसके घर में उसके सैनिक 50 को मार दिया। 22 मिनट की सर्जरी ट्रायल, आतंकी अड्डा तोड़ दिया, पाकिस्तान घबरा गया है, उल्टा ही मुंह मोड़ दिया। अब सेना के संग बॉर्डर पर तन दीपावली मनाई, सेना का सम्मान बढ़ाया या मैं झूठ नहाई, सेना का सम्मान बढ़ाया या मैं झूठ नहाई। खूब चली सरकार साथी सारा साथ में, और पार्लियामेंट नहीं बना दी वो थी तेरे हाथ में। बड़ा मजा आता है जब तू कहता मन की बात में। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। घूम रहे हो, कितना जन समर्थन अभी मिल रहा? देखिए जो जन समर्थन मिल रहा है, अब आपको भी, आप भी साथ साथ चल रहे हो, आपको भी जानकारी है। जन समर्थन जो आशीर्वाद आम जन का मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मोदी जी के नाम पर जो समर्थन मिल रहा है, उनकी योजनाओं को जो समर्थन मिल रहा है, जबरदस्त समर्थन, जबरदस्त आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर आप टिकट की दौड़ में नहीं थे, उसके बावजूद भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया, बहुत बड़ा विश्वास जताते हो। देखो ऐसा है, मैं टिकट की दौड़ में जरूर नहीं था, ये सही थी, लेकिन टिकट की वो वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, कृष्णलाल जी हैं, वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और उनकी जो दूरबीन है ना, वो उनका त्रिनेत्र है ना, बहुत तेज है। वो बैठे बैठे कहीं भी कोने में भी कोई बैठा हो तो उसको पकड़ लेते हैं। हाल ही में विधानसभा हुए हैं, जो दौसा के जो आपका संगठन है वो कहीं बिखरा नजर नहीं, संगठन कहीं बिखरा हुआ नजर नहीं है। ये सही है कि देखो परिवार जब बड़ा होता है ना तो छोटी मोटी तो होती रहती है, उसमें कोई खास नहीं। हमारा संगठन कहीं बिखरा हुआ नहीं, सारा संगठन एक एकजुट होकर काम करता है। क्या किसी बड़े नेता की कोई बड़ी जनसभा हो? बड़ी जनसभा यहाँ 99 का करीब मोदी जी की तय हुई है। नरेंद्र मोदी जी की यहाँ दौसा के अंदर बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। योगी जी की लालसोट में तय हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी की आज रोड शो है, 400 के अंदर है। नेताओं की कोई कमी नहीं, ठीक है। और हमारे बढ़ाना जी जो मंत्री हैं वो पूरे क्षेत्र में वो भी दौरा कर रहे हैं। एक और ले एमएलए साहब जो ले वोटिंग का वो रहा है, लोकसभा में वही रहेगा।
जिस तरह से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, मुझे ये जनसभा से ऐसा लग रहा है कि ये जीत और लंबी जाएगी। सिकराय के मेन मुद्दे ऐसी कोई? सिकराय का मेन मुद्दा पानी का मुद्दा है। ERCP लागू हमारी सरकार ने 2 महीने के अंदर एमओयू साइन कर लिया है। बहुत जल्द इसका सर्वे होकर DPR में बांध जोड़ दी जाएगी और जहाँ तक मुझे विश्वास है सिकराय के सभी बांध इसमें जुड़ेंगे और इससे सिकराय के अंदर विकास की नई गंगा लगेगी। हमारे मंत्री स्वागत कर रहे हैं। हमारे विधायक जी का गौरव मोहन लाल जी और हम लोगों को अरे बैठ जाओ भाई, सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। सियावर रामचंद्र की अपना सहयोग प्रदान कर रही है, युवा व्यक्त करती हूँ। ये आपका जो मत और स्नेह है ये हमारे क्षेत्र के विकास सुने जाते हैं और जब तक हमारा कोई प्रतिनिधि सरकार के बराबर मैं आपके बीच में आया हूँ, आपने स्वागत किया, सम्मान किया, सफल हो गया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका जो प्यार, जो प्रेम और जिस तरह से आपकी आवभाव दिखाई दे रहे हैं, मैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 19 तारीख मंडला में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिले के बीजाडांडी क्षेत्र में हुआ आगमन। इस दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर जनता को किया संबोधित, जिसके बाद मुख्यमंत्री यादव सभा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने बीजाडांडी क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता से वादा किया कि आचार संहिता के बाद आपके क्षेत्र को लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी एवं महाविद्यालय की सौगात मिलेगी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजाडांडी क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते का प्रचार करने आया हूं, जहां पर क्षेत्र की जनता का प्यार और दुलार मिल रहा है। इसी प्यार और दुलार के चक्कर में कांग्रेस बहुत दुखी है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी कुलस्ते भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मंडला लोकसभा के निवास विधानसभा क्षेत्र में आज मेरी सभा थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे करके चुनावी पारा चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मोदीमय हुआ है और मंडला लोकसभा भी हमारी लगातार दिनों दिन जनता के दिलों पे राज करते हुए भाजपा के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है। यहाँ के हमारे लोकसभा प्रत्याशी भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी निश्चित जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से उनको बधाई। यहाँ हमारे अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हमारी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके जी और हमारे अन्य मित्रगण सभी लोग आए हुए हैं और निश्चित रूप से जनता के बीच जाकर के भाजपा की बात कह रहे हैं और जिस ढंग का रिस्पांस मिल रहा है, कांग्रेसियों के पसीने छूट रहे हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बिना नंबरों के वाहनों से हो रहा है अवैध खनन। नंबर प्लेट पर पोती जा रही है कालिक। राज्य सरकार की अवैध खनन पर सख्ती के बावजूद भी अवैध खनन का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध खनन में लिप्त वाहनों पर कोई नंबर भी नहीं है, जिससे ऐसे वाहन पकड़ में नहीं आ रहे हैं या पुलिस विभाग उन्हें पकड़ना नहीं चाहती। वैसे उप जिला अधिकारी दीपक कुमार लगातार अवैध खनन को रोकने के लिए सक्रिय हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है। इसमें लगे वाहन चालकों ने एक नया तरीका निकाला है, जिसके तहत डंपरों पर या तो नंबर ही नहीं या फिर नंबर प्लेट पर कालिक पोत दी गई है। ऐसे खनन से भरे वाहन घाट क्षेत्र से चलते जो रास्ते में 3 थानों व कई चौकियों के सामने से होकर गुजरते हैं, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि किसी भी थाना पुलिस को ये वाहन दिखाई नहीं देते, जिससे पुलिस व खनन का अवैध परिवहन करने वालों के बीच किसी खेल की संभावना नजर आ रही है।